नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। किस्सा कुर्सी का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे आपको सदन लिए चलते हैं जहां राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। And authorizes the use of Pegasus in India. He is attacking the people of Tamil Nadu. He is attacking the people of Assam. He is attacking the people of Kerala. He is attacking the people of Bengal. Point of order. 52-1. 352-1. Speaker sir, 352-1 कहता है कि a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है सर, और यदि इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है, तो ये अपना फोन जो है जमा करें। पहले ये शामिल हो सर, ये पहले उसके इंक्वायरी में शामिल हो, क्योंकि इनका नाम भी पेगासस में है। सो कॉल्ड ये जो कह रहे हैं, इसीलिए ये पेगासस का नाम नहीं ले सकते सर, ये कोऑपरेट नहीं कर। Now, so what is happening is that a particular organization has captured the institutional framework of the country and is attacking the voice of the different states of this country. And my fear is that you will get a reaction from that voice. My fear is that this attack that you're carrying out on the institutional framework of this country is going to get a response from the Union of States. And you're fiddling. I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed, not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. The problem has already started in the northeast. The problem has already started in Tamil Nadu. You're not visible. It's not visible to you right now. Jammu Kashmir, which I will speak about, which is my third point. Now, what you're fiddling with is extremely dangerous, and it demonstrates a complete lack of understanding of history. Please, this evening, go back and look at all the empires that have ever ruled India. Look at them carefully. You will find that every single one of them is a union of states. There's not a single empire. There was a reason Ashok used to go and put his pillars everywhere. Because it was a union of states where Ashok, the great king, respected everybody. You are disrespecting everybody. Disrespect me, I don't care. It doesn't matter to me. But you cannot disrespect the people of this country. Right, now final. And I think one of the more important parts of my speech. Actually, I want to say one other thing, which I demand an apology from the Home Minister. And this represents again the idea of a union of states versus the idea of a king. Now, a few days ago, some political leader, I'm not going to name, came to me from Manipur. And he was very agitated. I spoke to him, I said, why are you agitated, my brother? And he says, Rahulji, I have never felt as insulted as I have a few days ago. I said, why? He said, Rahulji, a delegation of Manipuris, political leaders, senior leaders went to see the Home Minister. Outside his house, we were told to take off our shoes. And when we went inside his room,
we found that the Home Minister was wearing his chappals. What does this mean? What exactly does this mean? Why is it that in the Home Minister's house, the Home Minister can wear chappals, but a delegation of Manipuri politicians cannot? What does this mean? Why? No, it reflects. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं. मैं आपको फोटो दिखा दूंगा स्पीकर सर, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा. मैंने उस व्यक्ति से बोला आप गलत बोल रहे हो. उसने कहा राहुल जी मैं आपको फोटो देता हूं, और फोटो दी उसने मुझे. This is not the way to deal with the people of India. Anyway, now let me come to my final and I think most important point. Go ahead. We are sitting. संस्कृति ये होती है कि वो भी जूते उतारे और आप भी. संस्कृति ये नहीं होती कि वो जूते उतारे आप नहीं. ये पता नहीं कौन सी संस्कृति है आपकी. Anyway, let me finish. Very, very ridiculous argument against the Honorable Home Minister. It's not. And it has touched the religious sensibility. He has touched the religious sensibility of all our people. You will decide. हमारी धार्मिक परंपराओं पर ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं क्या? Mr. Goyal, sit down. Mr. Goyal, sit down. Speaker sir, ये भारत के धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, भारत की धार्मिक परंपराओं पे अटैक कर रहे हैं, और ये हम सबकी धार्मिक परंपराओं के ऊपर आघात है. चेक कर लूंगा. हमारे घर में भी यही है परिस्थिति. Sit down. Speaker sir, आप सबको खड़े हो जाते हो भाई. it reflects a mentality. It reflects a sense that I am bigger than you. You are nobody, I am everybody. That is why I will wear my shoes and you will not. Anyway, going back to the main point. Now, and the final most important point. My understanding is that the RSS and the BJP is playing with the foundations of our country. And they are weakening the foundations of our country. They are weakening the links between our people. They are weakening the links between our languages. Now, they have further weakened the country. They have further weakened the country by ensuring that not a single Indian youngster can get a job. So today, unlike a decade ago, 15 years ago, India is weak. Ask yourselves why you were not able to get a guest on Republic Day. Ask yourself that question. Don't look surprised. Ask yourself that question. What is happening is that India today is completely isolated. We are completely isolated and surrounded. We are surrounded in Sri Lanka, Nepal, Burma, Pakistan, Afghanistan, China, everywhere we are surrounded. And our opponents understand our position. Please let me speak, because I'm saying something very serious, right? I'm saying something very serious. Let me say it. We have been weakened. The conversation between our people is not taking place. Our institutions are under attack, and we are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And one second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy
has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. This is a very, very serious threat to the Indian nation. We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, what are the mistakes? I have just told you. You have brought China and Pakistan together. You have brought China and Pakistan together. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. And by the way, in case you haven't realized it, in case you haven't understood what's going on, it is very clear that the Chinese and the Pakistanis are planning. Look at the weapons that they are buying. Look at their activity. Look at the way they are talking. Look at who they are speaking to. I am clearly stating in the House of Parliament that we have made a massive blunder, and we need to make sure, absolutely sure, that we can defend ourselves against the Chinese. Please remember what I'm saying, because the Chinese will act. Remember what I'm saying, and remember that you will be responsible for anything that happens. That is why it is important that as a nation we start this conversation. It is important as a nation that you listen to what we say, because we have experience, we have understanding. You might not think so, but we have people on this side who understand these things, have great understanding. Use us. Use us. I can see that some of you are understanding what I'm saying. I'm happy. I'm happy. I can see. So these are the 3 points I wanted to make today. The nation is now at risk. The nation is at risk. The nation is at risk from outside. From inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I'm very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. And so that is why I thought it was important that I speak today. I know that many of you will just rubbish what I'm saying. I understand it. That's what you've been told to do. And I'm happy to let you do it. But remember what I said. You are putting this nation, this wonderful nation and its people at huge risk. Stop. Thank you. कमलेश पासवान जी, आपको मौका है। कमलेश पासवान, प्लीज
आप बैठिए, आप क्यों गए? बैठिए। राहुल गांधी को लोकसभा में आपने सुना, उन्होंने लगभग हर मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा चीन और पाकिस्तान एक साथ आए हैं, चीन की चालबाजियां बॉर्डर पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान चुप है। कोई मेहमान गणतंत्र दिवस पर क्यों नहीं आए? देश आज खतरे में है। क्या ये बताने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अलग थलग पड़ गया है? चीन के अतिक्रमण पर सरकार चुप है। डोकलाम लद्दाख में चीन का प्लान हमने देख लिया। राहुल गांधी ने देश से लेकर के विदेश तक तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने साफ तौर पर अपने परिवार की, अपनी पार्टी की देश को लेकर के कुर्बानियां याद दिलाई और सबसे अहम बात, उन्होंने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी कटघरे में लिया। उन्होंने कहा कि वो भाषण जो था वो सत्यता से कोसों दूर था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस भाषण में कहीं भी राष्ट्रपति ने ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान रहते हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। उन्होंने साफ तौर पर अडानी पर हमला करते हुए कहा कि सब कुछ देश में अडानी को बेचा जा रहा है, नोटबंदी और जीएसटी से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेड इन इंडिया वाले असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जिसे बर्बाद किया जा रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा। और साफ तौर पर बहुत आक्रामक तेवर में लोकसभा में राहुल गांधी ने अपनी आवाज उठाई। देखिए, राजनीति में सब कुछ जायज होता है, ऐसा कहते हैं। जब विरोध में होते हैं तो तीखी बयानबाजी आम बात होती है। पश्चिमी यूपी को जीतना मतलब यूपी की सत्ता पर अधिकार। बस इसी मंशा से पश्चिमी यूपी इन दिनों सियासी शतरंज की बिसात बनी हुई है। बीजेपी के दिग्गज रोजाना वेस्ट यूपी का दौरा कर रहे हैं, विपक्ष पर हमलावर हैं, तीखी बयानबाजी भी हो रही है। अमित शाह बदायूं, अलीगढ़ पहुंचे, घर घर दस्तक अभियान चलाया, पर्चे बांटे, वोट मांगे और समाजवादी पार्टी को फिर से निशाने पर लिया। सीएम योगी भी आज मथुरा, बुलंदशहर गए, चुनावी रैली की, विपक्ष पर हमला बोला। आज भी मुजफ्फरनगर और कैराना दंगों का जिक्र हुआ तो अखिलेश और जयंत ने शामली में कहा कि यूपी का ये चुनाव भाईचारा और बीजेपी के बीच है। देर से ही सही मायावती ने भी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। आगरा में मायावती ने बीजेपी सरकार पर बीएसपी सरकार में किए गए विकास और जनहित कार्यों का ही नाम बदलकर उद्घाटन करने की बात कही। कुल मिलाकर देखें तो गर्मी, चर्बी, दंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द सियासी घेरेबंदी अब की जा रही है। क्या यह ध्रुवीकरण जरूरी है? क्या जनता से जुड़े मुद्दे, विकास, रोजगार, महंगाई जैसे खालिस जमीनी मुद्दों की कमी पड़ गई है? या फिर पश्चिमी यूपी भी यही चाहता है कि असली मुद्दों की जगह आभासी मुद्दों पर ही चुनाव हो? शायद नहीं। ये तो खैर 10 मार्च को चुनावी नतीजों के बाद जनता बता ही देगी और सबको पता चल ही जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई दिनों से पश्चिमी यूपी पर फोकस किए हुए हैं। आज भी वो अलीगढ़ और बदायूं में थे। अमित शाह ने विपक्ष पर तेज हमला बोला। देश को सुरक्षित करने का काम किया है भाइयों बहनों, देश को सुरक्षित करने का काम। इस सोनिया मनमोहन की सरकार की 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जवालिया घूस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर, माथे पर जू नहीं हो, मौनी बाबा मौन बैठे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई। ये पाक प्रेरित आतंकवादियों को मालूम नहीं था कि ये सरकार बदल गई है। उन्होंने उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं, ना ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। इस बसपा सपा ये बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश माफियाओं का सेंटर बन गया था, माफियाओं का सेंटर बन गया। आए दिन दंगे होते थे, बहन बेटियों का सम्मान नहीं था, भू माफिया गरीबों की भूमि हड़पते थे,
गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे बताओ, आज सहसवान में कोई भी माफिया का हिम्मत है कि बहन बेटी के सम्मान के विरुद्ध काम करे? है हिम्मत? माफिया तीन ही जगह पे है भाई, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो बदायूं की जेल में है, या तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा और बुलंदशहर गए, चुनाव प्रचार किया और साथ ही अखिलेश और जयंत की जोड़ी को लेकर हमला भी बोला। यहां भी मुजफ्फरनगर और कैराना के दंगों का उन्होंने जिक्र किया। अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। इस कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा इस सपना साकार नहीं होने वाला है। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका बचाव तब भी कर रहे थे। आपको याद होगा, चुनावी माहौल में योगी ने कहा था कि जल्दी गुंडों की गर्मी निकल जाएगी। इस पर अखिलेश ने किया है पलटवार, सुनिए। उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। जारी रहेगा किस्सा कुर्सी का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस ने नए सीएम के लिए वोटिंग करवाई थी, जिसमें से 79 विधायकों में से 42 उनके हक में थे। चरणजीत चन्नी का सिर्फ 2 विधायकों ने समर्थन किया था। इसके बावजूद वो सीएम बन गए। सुनील जाखड़ ने पहली बार ये बात अबोहर में कांग्रेस कैंडिडेट के प्रचार के दौरान कही। इस गल का गिला नहीं भी आप कितने होंगे कि नहीं होंगे। परमात्मा जो करता है बड़ा सही करता है। एक इस गल का मैं कोई गिला नहीं साहब भी मैनू 40 नहीं 42 MLA वोटा पाई जो मैं थोड़ा फैक्ट दस देना। 42 वोटा सुनील नूं पईयां, 16 वोटा सुखजिंदर रंधावे नूं पईयां, 12 वोटा पईयां महाराणी परनीत कौर नूं, 6 वोटा पईयां नवजोत सिंह सिद्धू, 2 वोटा पईयां चन्नी। देखो देखो मैं मेरा एक ही गिला सीगा जो मैनू बुला के राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तेन डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं। मैं कहती
हालांकि आपको बता दें, इस बयान के बाद सुनील जाखड़ की सफाई भी सामने आई है और बोले हैं कि उन्हें उन लोगों से मलाल है जिन्होंने पंजाबियत की पीठ में छुरा घोंपा है। मलाल ये है कि जो लोग ये सोचते हैं, उन्होंने पंजाबियत के ऊपर एक बड़ा, मैं समझता हूं, पंजाबियत पिठ से छुरा मारे, जिन्होंने लोगों को पंजाबियत ही नहीं समझ आई। मैं बादल साहब ने कई बार कहा भी थोड़े ਜਿਹੜੇ बैठे कई थोड़े नाल भी है, चाहे हूं इन्होंने अमृत छकिया होना, पर मैं इन्हां नालों सच्चा सिख हां, क्योंकि जिस दिन सारा होया फैसला होया उस तो अगले दिन अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने गल कही है भी पंजाब के अंदर, पंजाब का सब तो बड़ा सैकुलर अगर कोई सूबा हिंदुस्तान च है तो पंजाब है। ते पंजाब ने अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब कह रहे कोई फर्क नहीं पैंदा कौन बनता, एक अच्छा इंसान जिहड़ा पंजाब की बेहतरी कर सके, सन तो वह बंदा चाहिए। न चन्नी न सिद्धू पर सीधा दांव, केजरीवाल के फॉर्मूले से पंजाब के लिए सीएम चेहरा खोज रही कांग्रेस ने बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सीएम के चेहरे के लिए जिन नामों को विकल्प में रखा है वो चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू हैं। इनके अलावा तीसरा ऑप्शन बना है कि कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के ही चुनाव मैदान में उतर जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नवी दिल्ली ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਬਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਬਾਓ। धन्यवाद। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर राजनीति में चौंकाने वाला फैसला लिया है। मंगलवार को अचानक सारे प्रचार कार्यक्रम छोड़कर सिद्धू वैष्णो देवी रवाना हो गए। उनके प्रचार के 10 कार्यक्रम रखे गए थे। ज्यादातर कार्यक्रम उनके अमृतसर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में थे, जहां से सिद्धू खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया के उतरने के बाद यहां मुकाबला कड़ा हो चुका है। हालांकि सिद्धू को वैष्णो देवी जाने के बारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर से कुछ नहीं कहा जा रहा। उनके करीबी ये दावा जरूर कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम अचानक नहीं बल्कि पहले से तय था। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले अकाली दल ने अचानक दिग्गज नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को मजीठा सीट के साथ सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इसके बाद सिद्धू ने कहा कि मजीठिया में दम है तो फिर अमृतसर ईस्ट से लड़ें। कल ही मजीठिया ने इस चुनौती को कबूल करते हुए मजीठा सीट छोड़ दी और सिर्फ अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मजीठा से अब मजीठिया की पत्नी गुनीत कौर चुनाव मैदान में। उत्तराखंड चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने देहरादून से वर्चुअल रैली की। इस रैली में प्रियंका ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 साल में हर वादे को तोड़ा है। प्रियंका ने यह भी कहा कि बीजेपी के राज में किसान, नौजवान और दलित सभी परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया। प्रियंका ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। सरकारी नौकरी में 40% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही गैस की कीमतें 500 से पार नहीं होंगी। आपको ये भी बता दें कि आगरा से करीब 80 किलोमीटर दूर बाहा विधानसभा में किसानों के चुनावी मुद्दे क्या हैं, खेती से जुड़ी उनकी समस्याएं क्या हैं, जिन पर वो सरकार की तवज्जो चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी सहयोगी उर्वशी खोना ने किसानों से ट्रैक्टर पर चढ़कर बात की। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के एक जगह पर आप पहुंचे हैं, आगरा के नजदीक बाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के नजदीक के ये सारे इलाके हैं जहां पे हम फिलहाल हैं। और यहाँ के इन विलेजेस, यहाँ के जो ये गांव हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ के ये किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताया गया था कि किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं निराश थे योगी गवर्नमेंट से लेकर, योगी गवर्नमेंट को लेकर। क्या वो वाकई में नाराज अभी भी हैं या कुछ चेंजेस हुए हैं? क्योंकि फार्म लॉस जिस तरह से हो रहे थे उससे कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं वो नाराज थे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाराजगी है फार्म लॉस को लेकर, जिस तरह के फार्म लॉस आए थे उसको लेकर?
जी बिल्कुल है। योगी सरकार जो है वो गायों पर इतना वो हुआ है कि आज जो किसान की फसल है वो गाय उनको खा रही है, किसान बर्बाद है, किसान को किसी तरीके की सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है। ये बताइए कि अब जो है किसान कानून वापस कर दिए गए हैं, तो क्या नाराजगी हट गई है या ये नाराजगी वोटों में दिखेगी? नहीं, नाराजगी बिल्कुल दिखेगी वोटों में। असल में किसान इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि क्या किसान कानून है और क्या हटाया गया है और क्या बनाया जाएगा। इस चीज को किसान नहीं समझ पाया है अभी तक, तो नाराजगी बिल्कुल दिखेगी। किसान आज इस हालत पर पहुंच चुका है, डीएपी इतनी महंगी हो चुकी है, खाद इतना महंगा हो चुका है, डीजल इतना महंगा हो चुका है कि किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। सर, आप लोग सब भी किसान हैं, क्या एक इस बार जब इलेक्शंस जा रहे हैं 10 तारीख को आप लोग वोट करने जाने वाले हो, तो किस तरह से वोटिंग होगी, कहाँ पे ध्यान रहेगा, क्या मुद्दे रखने सोच के आप वोटिंग करने जाने वाले? सबसे पहले तो गायों का ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे खेत खा जाएंगी गायें, उसके बाद जाएंगे वोटिंग करने के लिए। सब चीज देखनी पड़ेगी क्योंकि गाय हमारे यहाँ पे बहुत है, नुकसान बहुत होता है। एक छोटा सा गौशाला खुल जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। गौशाला ये मुद्दा है, आप क्या कहें? हम ये कहेंगे योगी सरकार न्यूनतम की बात करती है। देखिए, आप देख रही हैं गाय हमारी माता राष्ट्रीय माना जाता है, लेकिन गाय आज देख रहे हैं इतनी दुर्दशा है कि रोना आता है गाय को। जगह जगह किसान डंडा मार रहा है, लाठी मार रहा है, फरसे मार रहा है, गाँव की दुर्दशा है, गाय भूखी मर रही है। और ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, सबसे पहले हमारी गाय माता की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, गौशाला होनी चाहिए। केवल धर्म के नाम पर वोट मांगती है, व्यवस्थाएं केवल नहीं करती, यही हमारा है। सर, आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या सारी चीजें देखेंगे, क्या कहीं पे थोड़ी नाराजगी है गवर्नमेंट? हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हाँ खुश है हम तो। खाली गाय से नाराजगी है थोड़ी, बस। सो गाय तो वोट डली है यहाँ पे, हाँ, और कोई हमें नाराजगी नहीं है। बीजेपी को वोट देंगे। आपकी कितनी गाय अभी भी है जो स्ट्रे कैटल है, वो कितने अभी भी मतलब ये होंगी? 100 सवा से गाय है एक गांव में, रिदमुली में। आवारा जो है 100 के करीबन है। आप बताइए। जी, हमारे गांव में हम किसान हैं और रात में खेत रखाने जाते हैं, आवारा पशुओं का नुकसान कर रही हैं, गायें ढीली हुई हैं। और गवर्नमेंट के मतलब जो सरकार जो बनाई है, हम उसी को बनाना चाहते हैं। वो हमें सुविधा इतनी बना दे कि हमारे यहाँ ये पशुओं का कुछ इंतजाम कर दे, जो हम किसान भाई आराम से घरे रुक के सो सकें। रात भर खाने जिए और रात में सो नहीं पाते, हम लोग आधी रात तक रखाते खेत। यही मांग है हम सरकार से। सुधार चाहिए मुझे। यहाँ पे जो टेक्निकल खेती है वो नहीं हो पा रही है। यहाँ का किसान टेक्निकल खेती जानता ही नहीं है क्या चीज़ होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो आवारा जानवर हैं उनके लिए इस गांव में एक गौशाला बन जाए, जिससे यहाँ के ही कुछ लोग नियुक्त किए जाएं, जिससे उनकी देखरेख हो सके और उनको अच्छी तरह से उनका लालन पालन हो सके। और टेक्निकल खेती के लिए हमारे यहाँ जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये चीज़ होती है। उसके अलावा गन्ने की खेती हमारे यहाँ किसान जानता ही नहीं। कभी कभार 2-4 किसान है वो कर भी लेते हैं गन्ने की खेती, करने के बाद वो गन्ने को लेके कहाँ जाएं। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, यही अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे यहाँ बहा डिस्ट्रिक्ट आगरा तहसील बहा के अंदर कुछ ना कर सके, ज्यादा बड़ा ना हो सके तो छोटा सा ही शुगर मिल डाल दें। आपको बता दें, इसके अलावा इंडिया न्यूज की टीम आगरा के पास रुदमुली गांव पहुंची है। वो गांव है जहां हर एक घर से फौजी निकलता है। देशभक्ति का ऐसा जज्बा आपने किसी गांव में नहीं देखा होगा। देखिए उर्वशी खोना की ग्राउंड रिपोर्ट। जब हम बात करते हैं रुदमुली की, जहां पे हजारों की तादाद में सैनिक बाहर निकले हैं और आज के यानी कि वर्तमान काल में भी 180 के ऊपर ऐसे सैनिक हैं जो फिलहाल बॉर्डर पर लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए। हम उनसे उनके गांव में आ पहुंचे हैं और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस चुनावी माहौल में क्या एक रंग है, क्या यहाँ के फौजियों के परिवार वालों का कहना है। चुनावी रंग में हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग पार्टियां अपने लेवल पर अलग अलग तैयारियां कर रही हैं।
पर रुद्रमुली ऐसा गांव जहां पे सालों से हर घर से हर सैनिक बाहर निकलता है, ऐसे में यहाँ के फौजियों का और उनके घर वालों का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। होनी चाहिए इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो आप क्या देख के वोट करने वाले हैं? हम तो वोट देख के सुविधा कहेंगे तो हम मिलने चाहिए, हमें जो सुविधा है। और आप बताएं। ये मेडिकली की सुविधा होनी चाहिए, जैसे बुजुर्ग लोग हैं उन्हें दिक्कत होती है आने जाने के लिए, और तो वो आराम मिले सबको जाने के लिए। अभी फिलहाल कहाँ पे है अस्पताल? वहाँ पे 6-7 किलोमीटर दूर है, जाने ले जाने में दिक्कत होती है, रात में दिक्कत आ जाती है तो घर वाले परेशान हो जाते। पास में हो, जो गांव में सुविधा मिलेगी वो ठीक रहेगी। आप बताएं सर। मेरा नाम रुल सिंह भदौरिया है, और सुविधा के लिए हमारे गांव में एक तो रेलवे का छोटा सा जंक्शन होना चाहिए, कि हमारा गांव शहीदों का है और हमारे गांव में सैनिक भी प्रेजेंट में भी हैं और अधिकारी रैंक पे हैं, तो उन्हें आने जाने में भी दिक्कत होती है। जैसे आगरा से रात में आ पाते हैं काफ़ी लोग, कि उनके वो देहरादून से आए या कश्मीर से आए हैं तो आगरा तो आ जाते हैं, आगरा से वहाँ पे रात में उन्हें बस के लिए सुविधा नहीं मिलती है, तो ट्रेन का वो टाइम हो तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे जंक्शन हो गया हल्का सा, तो वो यहाँ स्टेशन है वो गाँव से 10 किलोमीटर आगे है और इधर 10 किलोमीटर पीछे है, तो उससे हमें कोई सुविधा तो है नहीं उस स्टेशन से। और हमारे यहाँ पे 5 गांव है, 5 गांव में 10,000 की आबादी है। जब तक कुर्सी है तब तक किस्सा है। आज किस्सा कुर्सी का में इतना ही। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।